Hello students, good evening. Today we will start a new chapter of class 10, that is electricity. I think you all are familiar with this topic because electricity is so important in our day-to-day life that we can't imagine even a day without electricity. So electricity is a highly important things which we have to study in this chapter. I think you will study why electricity is generated, how electricity means electric current flows through a conductor, what is the reason behind the movement of electric charges through the conductor, what is the heating effect of electricity. All these things will be studied in this chapter. So in this chapter we will study about the flow of charges. First of all, try to understand what is electricity. Electricity is actually the flow of charges through a conductor. What do you mean by conductor? Anything through which electric current passes is known as conductor. So electric charge passes through a conductor. The conductor may be of two types, that is metallic conductor and the electrolytic conductor. In metallic conductor, electric charges flows through the conductor in the form of electronic charge. Where is an electrolytic conductor? Electricity is conducted through the movement of ions. मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से. कंडक्टिंग मटेरियल दो प्रकार के होंगे, एक मेटलिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है आयन के मूवमेंट से. अब देखें कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज electric current is defined as the rate of flow of charges through a given cross section of a conductor In other words, you can state this: the rate of flow of electric charges means electric charges. Rate of flow of electric charges through a given conductor, given cross section of a conductor, or you can say through a given area of a conductor. Now this movement of electric charges through a given cross section is
continued only when there is complete circuit of the current. There must be some source of energy which applies certain potential difference between the terminals of the conductor. Only then the electric current will pass through the conductor. मतलब जब तक हम किसी कंडक्टिंग वायर के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप करेंगे या वो नहीं रहेगा, तब तक ये करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ हमको देखना है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट और लिख सकते हैं आप द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस passing per unit time through a given cross section or area of a conductor। मतलब समझ लीजिए कि यदि यह कोई तार है, कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि वायर है, अब इसका क्रॉस सेक्शन कहीं हम ले, ये है, मान लिया जाए कि ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस पॉइंट से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास किया है ना, यही इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाएगा। चार्ज फ्लोड पर यूनिट टाइम, तो इकाई समय में जितना चार्ज इससे फ्लो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ से या क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ से एक सेकेंड में जितना चार्ज पास किया, जितना चार्ज एक सेकेंड, हर सेकेंड में जितना चार्ज पास करेगा वो करंट के मान को बताएगा। इट विल से अबाउट द क्वांटिटी ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर से करंट के पास करने की माने क्षमता को बताएगा कि कितना पास कर रहा है। अब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको हम कहेंगे, क्योंकि करंट जब भी पास करेगा तो करंट को पास करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए, ऐसे करंट नहीं पास करेगा, इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए और उसके बीच हमको एक सर्किट, कंप्लीट सर्किट चाहिए। इस कंप्लीट सर्किट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब या तो सेल होगा या बैटरी होगा, उसके टर्मिनल से हम जब इसको जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, सिंगल सेल जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, मतलब जब दो या दो से अधिक सेल्स को एक डिफरेंट ऑर्डर में इंड टू इंड जोड़ दिया जाता है तो वह कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। जैसे मान लीजिए एक ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, हम दो सेल जोड़ दें तो उसका कंबाइंड पोटेंशियल कितना होगा, 3 वोल्ट। 3 सेल जोड़ेंगे तो 4.5 वोल्ट होगा, 4 सेल जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ सेल्स को जब जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा बैटरी। तो बैटरी बनेगा और वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही ये करंट पास करता है किसी कंडक्टर से। तो एक कंप्लीट सर्किट हम उस किसको कहते हैं, द क्लोज्ड पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेज और करंट पासिंग द करंट इज नोन एज
इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, मतलब दे मस्ट नॉट बी डिसकनेक्टेड एनीवे। और इसको डिजायर्ड अमाउंट में चार्ज पास कराना है या करंट पास कराना है तो उसके लिए इच्छा अनुसार करंट को ऑफ करने और ऑन करने के लिए हम वहाँ स्विच लगाते हैं। तो स्विच का मतलब क्या हुआ? स्विच एक कंडक्टिंग लिंक है, एक कंडक्टिंग लिंक है जो दो टर्मिनल के बीच करंट स्थापित सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमको उसकी ज़रूरत होती है। आवश्यकता अनुसार उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको हम ऑन भी कर सकते हैं। इस तरह से करंट पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाएगा? ए क्लोज्ड पाथ, ए क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट between the positive and negative terminals of the source of electric current, that is cell or battery, including the essential or desired components of the circuit। मतलब क्या समझे? माने इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? इट इज़ ए क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह करंट का एक क्लोज पाथ है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है वो कौन हो सकता है? सेल या बैटरी हो सकता है। इंक्लूडिंग द एसेंशियल और डिजायर्ड कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट एसेंशियल है वो उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, या जिन कंपोनेंट्स के, जैसे बल्ब मान लीजिए आपको जलाना है, उसमें करंट मापने के लिए एमीटर लगाना है, वोल्टेज नापने के लिए आपको वोल्टमीटर लगाना है। तो इस तरह से, या स्विच जहाँ कहीं और लगाना है, या की प्लग लगाना है, वेरिएबल रेसिस्टर्स कहीं लगाना है, तो सब कुछ माने मिलाते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए जो एक सर्किट पूरा बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मतलब कंप्लीट पाथ हो गया ये। अब स्विच क्या है? स्विच किसको कहेंगे? मतलब स्विच इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच में बी कंसिडर्ड एट द एक क्या कह सकते हैं उसको? कनेक्टर, है ना? सर्किट कनेक्टर कह सकते हैं, कंडक्टिंग लिंक कह सकते हैं, कंडक्टिंग लिंक और कनेक्टर विथ
desired मतलब क्या है, कनेक्टिंग लिंक और कनेक्टर बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी which can be handled as per our desire. That can be switched on or off as per our desire. मतलब हम अपने इच्छानुसार इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो स्विच क्या है, दो माने किसी पॉइंट पर माने इच्छानुसार करंट पास कराने के लिए हमारा एक डिजायरेबल डिवाइस है। ठीक है। अब इस करंट का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा या करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या कहा, amount of charge, amount of electric charge by time, टाइम ये कैसे होगा, तो यूनिट टाइम में क्यू चार्ज पास कराया है। तो सपोज Q charge is passed through a given cross section during time टी सेकंड है ना। मान लीजिए हम टी सेकंड में क्यू चार्ज को पास करा रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम amount of charge passed per unit time will be given as क्या होगा, Q बटा T। क्यों, क्योंकि आप देखिए T टाइम में Q चार्ज पास करता है, टी टाइम में क्यू चार्ज पास करता है, इसलिए यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा क्यू बटा टी, और इसी यूनिट टाइम में जो चार्ज पास किया उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। इट इज़ द मेजर ऑफ चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम
that is the current in the conductor। ये कंडक्टर से करंट ही जा रहा है, माने Q/T। अब इसको हम एक नए संकेत से एक्सप्रेस करते हैं। वी विल एक्सप्रेस Q/T विथ ए न्यू सिंबल और करंट, दैट इज I इक्वल टू Q/T। व्हाट इज I? Electric current, magnitude of electric current, where I is the amount of electric current produced in the conductor, produced in the current carrying conductor, current carrying conductor। मतलब I क्या हुआ? I is the amount of electric current प्रोड्यूस्ड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। उस कंडक्टर में कितना करंट पास कर रहा है, ये कहाँ से मिलेगा हमको? Q/T से। ठीक है, समझ रहे हैं? तो SI यूनिट SI unit of current of electric current। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन से अभी देखें I इक्वल टू Q/T, मैंने Q/T है। अब यहाँ चार्ज का SI यूनिट कितना होता है? कूलम। और टाइम का SI यूनिट क्या होगा? सेकेंड। कूलम और सेकेंड, तो उसका वैल्यू यहाँ दे दीजिए। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ चार्ज बाय SI यूनिट ऑफ टाइम बराबर क्या होगा? कूलम बटा सेकेंड। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं कूलम बाय सेकेंड और कूलम पर सेकेंड, है ना? ये लिखा जाएगा कूलम बाय सेकेंड या कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इन्वर्स पढ़ते हैं इसको। अब इसको एक नए नाम से डेजिग्नेट किया गया है। तो दिस इज denoted by a special name, a specific name. This unit is commonly known as ampere, that is A। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, है ना? तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? एम्पियर। अब इस एम्पियर को हम अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं?
मतलब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज दैट करंट विच इज जनरेटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है तो हम कहेंगे कि इससे कितना करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। किसी कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। कब संभव है या कब कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट पास किया? यदि प्रति सेकेंड मीन्स हर सेकेंड उसके किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट में भी एक्सप्रेस्ड एज और डिफाइंड एज, so 1 ampere of electric current is that is the current produced when 1 coulomb of charge is passing or flowing per second through a given cross section। मतलब किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर का करंट पास करेंगे। कैसे, कब कहेंगे? तो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग और फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, है ना, ऑफ द कंडक्टिंग वायर ऑफ द कंडक्टिंग वायर। और सिंपली कंडक्टर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कह सकते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, अब इसको और दूसरे रूप में भी हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी समय कितना चार्ज पास किया, ये हम निर्धारित आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन करंट का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें करंट के अमाउंट को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर करंट मापता है। टाइम आपके पास है, हम किसी सर्किट से करंट माप लिए कि इसका करंट आई है, टी टाइम तक हम उसको पास कराए, तो इससे हमको फाइंड आउट करना हो कि कितना चार्ज पास किया टी समय में आई करंट के द्वारा। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं चार्ज के कैलकुलेशन के लिए। क्या कर सकते हैं आप, इसको रीअरेंज कीजिए, इसको रीअरेंज कीजिए तो हमको क्या मिलेगा, देखिए एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ये मिलेगा हमको इससे, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोट I इंटू टी, एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, I इंटू टी, है ना। अब इससे हम यदि करंट हमको मालूम है
कितना समय तक करंट प्रवाहित हुआ वो मालूम हो जाए तो हम चार्ज का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे ना। अब एम्पियर तो एक ऐसा यूनिट हुआ, लेकिन व्यवहार में हमको स्मॉल करंट की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए एक इसका छोटा यूनिट भी यूज किया जाता है। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है? एक मिली एम्पियर आप बोलेंगे, मिली एम्पियर, शॉर्ट में इसको MA लिखते हैं। कि कितना होगा? मिली का मतलब आप समझते हैं 10⁻³ मीन्स 1 एम्पियर का 1000वां भाग कम हो गया, मीन्स 10⁻³ एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर कहेंगे। सो 1 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻³ एम्पियर। कन्वर्सन फैक्टर ही हो गया। ज़रूरत पड़ने पर आपको एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलना है तो इस कन्वर्सन फैक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिली एम्पियर में दिया हुआ है तो एम्पियर में बदलना है तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मीन्स क्या होता है? इसको हम जनरली म्यू से दर्शाते हैं, माइक्रो को, इसको पढ़ते हैं म्यू। समझ गए ना। इस तरह से आप लिखेंगे म्यू, हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, पढ़ेंगे क्या? म्यू। तो म्यू माने माइक्रो हो गया, तो माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर। ये और छोटा हो गया, 1 मिली एम्पियर का भी 1000वां भाग हो गया माइक्रो एम्पियर। समझ गया ना। कितना हो गया ये? माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये माने ऐसा यूनिट के अलावे इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे ना। इसको मिटावें। अब हम ये आपको दर्शाना चाहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि 1 एम्पियर करंट कितना हुआ भाई? तो 1 कूलम प्रति सेकेंड पास किया तो 1 एम्पियर कह रहे हैं। तो कूलम को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते सकते हैं? चूँकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने का मतलब होता है कि उसमें वास्तव में कौन सी पास कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रवाह किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में हमको ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि करंट पास कर रहा है कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की। ये हमारा कन्वेंशन है, क्योंकि प्रारंभ में जिस समय चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का कन्फर्मेशन हुआ था उस समय हमको इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। तो प्रारंभ में चार्ज के प्रवाह की बात, चार्ज का फ्लो तो लोग जान रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जान रहा था क्या होता है। तो करंट को मान लिया गया था कि इट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट को क्या माना गया था? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेज। लेकिन बाद में वो कन्वेंशन कंटिन्यू आज तक भी है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, वास्तव में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता नहीं है। फ्लो एक्चुअली होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में क्या है? उल्टा आप अति करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक
direction of the flow of electric current is considered as the direction of positive to negative terminal. जो करंट प्रवाहित हो रहा है तो करंट की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव. बट एक्चुअली करंट इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in metallic conductor and movement of ions in electrolytic conductor. So suppose that we are considering the metallic conductor, means flow of electric current is opposite to the direction of flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है. तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो है, अकॉर्डिंग माने डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ लिखे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ electric current, direction of electric current is considered as from positive terminals to positive terminals to the negative terminals. टर्मिनल्स है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है. दिस कन्वेंशन वाज बेस्ड ऑन द conception that electric current generates by the passage of positive charge, है ना, from one point to another, means high potential to low potential. शुरू में पोटेंशियल माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज का ही पोटेंशियल ज़्यादा होता है और वहाँ से निगेटिव की ओर जाता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर. लेकिन ये कन्वेंशन आज भी मान्य है. ऐसा है था तो हम इलेक्ट्रॉन के ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. आज भी हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू निगेटिव टर्मिनल्स. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट वाज फाउंड दैट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल कैरियर ऑफ करंट इज इलेक्ट्रॉन, है ना. एक्चुअल कैरियर कौन है उसका, करंट इलेक्ट्रॉन है. सो करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द किसके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट के. आफ्टर द discovery of electrons, it was found that the actual carrier of electric current is are electrons और आयंस, है ना. कि कौन है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हैं. तो अब करंट की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है. इट इज ascertained that the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of flow of electrons। माने इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा के विपरीत इसको मानते हैं। क्लियर समझ रहे हैं? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस इलेक्ट्रॉन की जब खोज हो गई तो इसको इस रूप में कंसीडर किया गया। अब हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं अब इस अथी से कि किस प्रकार एक कूलम को हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। एक्चुअली इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो वैल्यू क्या है इसका 1.6 इंटू इतना। अब गौर कीजिए, इसी से हम एक कूलम का वैल्यू निकालना चाहेंगे कि एक कूलम कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो शॉर्ट देखिए, अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम उसके साइन को एक्सक्लूड करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? इतना कूलम चार्ज जो है कितना के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन के। इक्विवेलेंट मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के। तो 1 कूलम चार्ज कितना के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आ गया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप ले चलिए 10/16 किए इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक जीरो इधर ले आइए तो 100/16 कर दीजिए इंटू 10⁻18 हो गया इलेक्ट्रॉन। और इसको एक और बढ़ाइए, इसका वैल्यू कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम एम्पियर को, 1 एम्पियर को कैसे दर्शा सकते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस द 1 एम्पियर ऑफ करंट as if 6.25 into 10⁻18 electrons are passing through a given cross section per unit time constitutes an electric current of 1 एम्पियर। सो इस तरह से हम लोग 1 एम्पियर करंट इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में क्या होता है उसको डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज यहाँ इसको स्टॉप किया जाता है। और बाकी इस पेज नंबर, कितना पेज है, पेज नंबर 172 पर आपका इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है कल। एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन, कितना है एनसीईआरटी बुक का
और इसको इंटेक्स क्वेश्चन के रूप में है यहाँ मेंशन। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके लाना है। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक और शेयर भी कीजिए। ये एक न्यूली जनरेटेड चैनल है, सो इट रिक्वायर्स योर हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।